Chapter 1. Deccan Art. During the 14th century, the rise of empire state in southern India is significant in the history of the development of Indian art. They are the Vijayanagar Empire and Bahmin Sultanate, established in 1336 AD and 1347 AD respectively. Despite frequent conflicts between the two, both contribute immensely to various forms of art. The ruler of both these empires state patronized and promoted art. 14वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में दो राज्यों का उदय हुआ। भारतीय कला के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण है। पहला तो वो जो 1336 ईस्वी में और 1347 ईस्वी में स्थापित हुआ, विजयनगर साम्राज्य और भामिन सल्तनत। दोनों के बीच लगातार संघर्ष के बावजूद दोनों के कला ने विभिन्न रूपों में बहुत योगदान दिया। इन दोनों साम्राज्य के शासकों ने कला का संरक्षण और प्रचार किया। The Vijayanagar Empire, based in the Deccan Plateau region in South India, was established by two brothers named Harihar and Bukka. दक्षिण भारत में डेक्कन पठार क्षेत्र में स्थित विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो परेशानियां द्वारा की गई थी। It rose to prominence as a prosperous entity extended from Krishna to Kaveri and Bay of Bengal to the Arabian Sea. This kingdom witnessed abundant development of Hindu or the Santana culture, art and literature. Raja Krishna Dev was possibly the most able ruler of this kingdom. The painting of Vijayanagar Empire seems as evolved as that of Ajanta, though there are characteristics of Aparbhan style too. The brilliant example of Vijayanagar painting can be seen on the walls of Veerbhadra temple of Lipakshi. The various incarnations of Shiva, the divine being, Lord Vishnu, saints, musicians, etc. have been beautifully depicted here. हरिहर और बुक्का नामक दो परेशानियां जो स्थापित की गई थी, जो एक समृद्ध के रूप में प्रमुखता से बढ़ी हैं। कृष्ण से लेकर कावेरी और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैली इस रियायत में हिंदू या संतुन संस्कृति, कला और साहित्य का प्रचुर विकास देखा गया है। राजा कृष्णदेव संभवतः इस राज्य के सबसे सक्षम शासक थे। विजयनगर की पेंटिंग इस तरह लगती हैं अजंता के रूप में विकसित, हालांकि अभ्रंश शैली की विशेषताएं भी हैं। विजयनगर चित्रों के शानदार उदाहरण ओ के रूप में देखे जा सकते हैं। Parallel to the Vijayanagar Empire, the Bahmin dynasty, named after Sultan Alauddin Bahman Shah, was founded. One of its rulers, Firoz Shah Bahman, was a scholar and patron of arts. Besides fancying different languages, he was deeply interested in mathematics and science. जो फिरोजन शाह भामी थे वो डिफरेंट लैंग्वेज फिरोज शाह भामिन डीपली इंटरेस्टेड थे मैथमेटिक्स में और साइंस में। दिस सल्तनत सर्व्ड एज अ कल्चर लिंक बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। द आर्ट ऑफ पेंटिंग दैट फ्लोरिश ड्यूरिंग द एम्पायर कैरिड डिस्टिंक्ट प्रीजन इन्फ्लुएंस एंड आर्ट दैट डेवलप्ड here is better known as the Deccan style, where Ahmad Shah Wali Bahman changed his capital to Bidar, and he constructed a large number of buildings like forts, places, mosques and tombs, including the Rangin Mahai painted place, so called because of its elaborate decoration with motifs and inlay work. सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर बने विजयनगर साम्राज्य के बहमिन राजवंश के समांतर इसके एक शासक फिरोज शाह बहमिन एक विद्वान और कला के संरक्षक थे। विभिन्न भाषाओं को फेस करने के अलावा उन्हें गणित विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी। इस सल्तनत के उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक कड़ी के रूप में कार्य किया। इस साम्राज्य के दौरान पनपे वाली चित्रकला के फारसी प्रभाव को बढ़ाया और यहाँ विकसित हुई कला को दक्कन शैली के रूप में जाना जाता है। अब अहमद शाह वली बहमिन ने अपनी राजधानी को बिदर में बदल दिया तो उन्होंने रंगीन महल सहित किलों, महलों, मस्जिदों और मकबरों जैसी बड़ी संख्या में इमारतों का निर्माण किया। इसलिए प्रेरक और जरना कार्य से साथ इसकी विस्तृत सजावट की वजह से बहमिन राजा व उत्साह थे।
The Bahmin kings were jealous because of which they ignored the flourishing and advanced Santanam art of their neighbor Vijayanagar kingdom and could not adopt it. The greed of power due to internal division and mutual rivals resulted in the collapse of the Bahmin Sultanate, and it broke up into 5 states: Ahmednagar, Bijapur, Golconda, Hyderabad, Berar and Bidar. In 1565 they united briefly and destroyed the great Hindu empire of Vijayanagar. But the alliance had once dissolved and they returned to their old ways. Subsequently Ahmednagar acquired Berar and Bijapur annexed Berar. बहमिन राजा वह उत्साह थे जिसके कारण उन्होंने अपनी पड़ोसी विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध और उन्नत सनातन कला को अनदेखा कर दिया और उसे अपना नहीं कर सके। आंतरिक विभाजन और आपसी प्रतिद्वंदियों के कारण सत्ता के लालच के परिणाम स्वरूप बहमिन सल्तनत का पतन हुआ और ये 5 राज्यों में टूट गया, जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा जिसको हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं, बरार और बीदर थे। 1565 में उन्होंने संक्षिप्त रूप से एकजुट किया और विजयनगर के महान हिंदू साम्राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन गठबंधन एक बार में भंग हो गया और वे अपने पुराने तरीकों पर लौट आए। इसके बाद अहमदनगर ने बरार का अधिग्रहण किया और बीजापुर ने बरार का अधिग्रहण किया। Historical, the art of these principality is very important. The Bahmins paved way for the distinct style, and that was influenced by Persian style but is different from the Mughal art. According to art historian Hermann Deccan art was impacted by South Iranian and Brahmin and Arabian art, and Mughal paintings saw a combined influence of North Iranian and Turkish art. ऐतिहासिक रूप से इन रियासतों का कला बहुत महत्वपूर्ण थी। इन सभी को कला का बहुत महत्वपूर्णता थी। बहमानियों ने फारसी शैली से प्रभावित होने वाली विशिष्ट शैली के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन मुगल कला से अलग। कला इतिहासकार हार्मन गोइट्स डेक्कन आर्ट के अनुसार दक्षिण ईरानी और अरब कला से प्रभावित थे और मुगल चित्रों में उत्तर ईरानी और तुर्की कला का संयुक्त प्रभाव देखा गया था।